Good morning, sir. Good morning, dear. Good morning, sir. Very good morning to everyone. Am I audible?
Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर, आ रही है सर. ओके फाइन. आवाज लैग तो नहीं कर रही? नो सर. Yes, sir. ओके. रिजल्ट्स आर अबाउट टू कम फॉर मिड सेम 1. जिसका डर था वही हुआ. मुझे पहले से ही आइडिया था जो होने वाला है. आई नो कि ये क्लास अच्छी है, बट मैं ये भी जानता था कि ये अच्छी है सिर्फ 8-10 स्टूडेंट्स की वजह से, और बाकी सारे उनके पीछे बैठे बैठे क्रेडिट लेते हैं बिना मतलब का. ये भी मुझे पता था. दिस क्लास इज गुड फॉर जस्ट 8-10 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स. वही हुआ. मोर देन 80% of the students, in fact I should say even roughly around 90%. अब मुझे नहीं पता कि आपकी क्लास का how much percentage of your class, but until now how many sheets I have checked for midsem 1, more than roughly 90% of the students are failed. Sad to say. And the worst part is that the students who have failed, more than 80% of the students are failed on a single digit. 2 marks, 3 marks, 5 marks, 6 marks, 8 marks, 9 marks, like that. More than 80% of the students. Not only that, there are roughly around, I guess, 25 students. 25 such students are there who have scored 0 marks. 0. This is not worst. This is not worst. The worst thing is, in all the in most of the exam copies, answer sheets, the worst part is that Mahil-Nerot theorem question, almost 95% of the students are not able to solve Mahil-Nerot theorem question. While I have already said that this is very important, it usually comes. This I said. One more thing I have already told everyone, that it does not have a variety of questions to come. It's like short answer, very short answer, medium answer, long answer questions. There's no such variety. Most of the times, a big question come for Mahil-Nerot theorem. Thirdly, and it came, a big question came. Thirdly, the question which we have discussed in class, the question on which we have spent 3 classes, that question itself came into the exam. The question on which we have spent 3 classes. Still more than 95% of the people were not able to solve that question. I really don't know why. Once you already knew that this question is going to come, sir has said that this is important, still people are not able to do it. This is the worst part. Whatever I'm saying, it's not to a particular person or a particular group, not to even a particular class, but I'm saying with respect to everyone. Just check your status, especially those people who were not able to solve Mahil-Nerot question in the class, in that exam. Just look at yourself, what you people are doing. You knew it question is going to come. Same question came, which was discussed in class. Still, nobody was able to do that. God knows what you people are doing and what you want to do in your life. I don't know. But yes, I knew it before that just 8, 10 or 15 students are there in this class. उनका क्रेडिट सब लोग ले रहे हैं. 8-10 बच्चे हैं जो बोलते हैं बस, बाकी सब चुप रहते हैं. चुप रहने का सीधा सा मतलब है, there is a simple meaning. If you are staying quiet in the class, there is a simple meaning that you are not learning the things. Because I know
that when you learn the things and when you know something, it feels such a great pleasure to express that in front of your teacher and in front of your classmates, that yes, I know something. So if you are not speaking, that means you don't know. Most of the times, 90% times it is true. Just 10% people are that sort of people who really don't like to show show off the knowledge what they have, and they stay quiet, and just when it comes to the exam, then they show that what is their power. Anyways, decision is yours, choice is yours, how you want to study the subject. I have taken my choice that how I want to teach, but how you want to learn, obviously I cannot choose. Only you can choose that how you want to learn this subject. Importance of this subject I have already discussed. If you are planning for GATE, UGC NET, for any other thing, MTech, PhD, or even if you are planning for interviews, this is going to be one of the most crucial subject in your exams, any of the exam, even in the interviews. But still you are doing this to this. Uh, choice is yours. How you want to go for it. Chaliye. Anyways, yes, Pranjul. So, but Yes, I think Pranjul, only tell 8 me. to 10 students were there. Those who so, pardon me for this, Just but wait. I think only 8 to 10 students were who gave the exams. Am I audible to you, sir? There is some. Sir, am I audible to you? Sir? Wait.
Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Connection was lost. So that's why my voice was not coming to you, and even Pranjal's voice was not coming to me. Now I'm audible, sir. Sir, am I audible? Yes, now you are audible. Tell me. Oh, okay. I was saying that actually it was hardly 8 to 10 students, those who attempted the exam. I don't know who were they. Actually, 90% of the class wasn't able to give the exam because of the hostel fee criteria which the college provided. We even urged with college to do something regarding that, but the situation was like that they were not going to do anything and they weren't giving any decision till the last moment. And at the very last Like moment, they due did. to due to एक second. Due to which problem you were not able to give, you people were not able So to give the exam? hostel fee criteria, sir. Okay. So let me tell you the honest scenario what happened between the college and we students. Actually, Hmm. we students try to. We didn't had any problem with the examination what it was organized. We asked them Hmm. that we want to come to hostel for a particular time till the examination is there, like for 1 month. Hmm. They be like, if you come to 1 month, you will have to pay the fee for minimum 3 months. Hmm. Even if compulsory, you will have to pay the fee for 3 months. And our parents didn't agree to that, as it is not compulsory from the government to be in the to be there. And we can, even if we paid the fee for 3 months and we stopped there, we cannot even go to the classes because only 50% of attendance is mandatory and rest of other will not stay there. Hmm. So what was the purpose behind that? So we requested from the college, keep it's okay, we will give the exam, just take the fee for month wise, because earlier it was the a scheme from the college that you stay for 1 month and you can pay the fee month wise. And I don't know what happened. So all of the sudden they stopped this facility and they be like, pay for 3 months, pay for 3 months, pay for 3 months, and Okay. this was So actually something our parents didn't agree to. So 90% of the students from the class outsiders didn't give the exam. I went through the paper. okay. Honestly, I don't know what it was so hard. I didn't found it like that because there were few concepts I wasn't able to solve. Like the last question, it has two parts. I didn't understood that. I'm honestly giving my reviews for the paper, but Mm-hmm. it was not like that. We didn't want the exam. We all of students even present here. I don't know why people don't come to this class, but we were about to give the exam. But college be like, the hostel department be like, you have to pay the fee. You have to pay the fee. So that was the problem, Okay. sir. Okay. Was it the problem with most of the students? If Yes. everybody, if everybody agree, then just show me a raise hand. I want to have that count. Again, I'm saying if everybody agrees to the same point, or everybody is like all those people who agree to the same point, give a raise hand and don't lower your hands until I don't say. Even the students who are not Wait, present here, they wait. wrote the mail regarding that. I have some screenshots. I can show you those who mailed No, no, regarding no, this no, hostel. no. Dear, no need to show me because I'm not the correct person to discuss this thing. But still, let's have some 5 minutes. It's always good to listen to students at least. If there, I always believe that there should be somebody to whom they can express their feelings with the open heart, whether they are solved or not. That's not the all. That's not the always case. But yes, at least somebody should listen to them. We have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Till now, I've got only 8 hands, 8 or 9 hands with respect to this. That means all rest of the students didn't face the same problem. Nobody has to fear. No, nobody has to be scared about anything. I'm not going to share any particular details with anyone, right? Just with the open heart and without any fear, you can tell me whatever you feel. So if again I'm saying, if you really feel so, just show your hands, show your raise hands.
This is roughly around 9 or 10 students. All rest of the students, I guess, does not belongs to this category. So there's one thing that it's not about 80-90%, it's about 9 to 10 students. Can I say this? Sir, okay, if for now, for this class, I don't know what it is, but there your are many your who are voice not is present. your voice is not coming. Speak once again. Uh, Sir, there are many who are not present in this class and they face the same issue. They even wrote the mails regarding this to our respective HOD and our class teacher, Hmm. but to no avail. The department remained the same. Even our HOD tried to talk out with the hostel department, but Hmm. still the situation was the same. Okay. I can name two students if you want. No need to take name of anyone without his or her permission. Fine, but as uh, whatever the actual statistics, apart from that, just with this moment concern, I can see that hardly 8 to 10 students, 8 to 10 such students are there. Rest of them have not raised the hand. Whatever is the reason, I don't know, but as if now I am considering that they didn't face the problem. At least those are students who are present now. That is one thing. Okay. Second thing, one thing which I would like to advise to all of you. uh, Let me tell you one thing. uh, इट्स नॉट लाइक कोई भी ऐसा नहीं समझे कि मैं कॉलेज को या हॉस्टल को फेवर करने की बात कर रहा हूँ या एनी सच थिंग. मैं सिर्फ आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. ओके, जस्ट माय एक्सपीरियंस. Any foreign national student present in the class? Say a yes, sir, if you are present. Yes, sir. Okay, fine. Sri Narayan, but you are comfortable with Hindi. Anybody who is not comfortable with Hindi, any such student present in the class right now? Say a yes, sir, if you are. Is there any foreign national student who is not comfortable with Hindi and present in the class? Say a yes, sir. Fine. सब हिंदी वाले ही हैं. देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ. जस्ट बीइंग योर TFL टीचर, जो भी हॉस्टल में इश्यूज हुए या वट एवर द थिंग वाज, डेफिनेटली ना तो मुझे राइट है उस बारे में कुछ भी कमेंट करने का, ना आपकी तरफ से ना ही हॉस्टल की तरफ से, और ना ही मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स वो हॉस्टल डिपार्टमेंट का मैटर है एंड दे शुड बी एड्रेसिंग दैट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस. आई जस्ट वांट टू गिव अ सिंसियर एडवाइस टू माय स्टूडेंट्स, दैट्स इट. एक बात सब लोग अच्छे से समझ लीजिए. देखो बेटा, क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. लाइफ में हम पैसा दो तरह से खर्च करते हैं. कोई बता सकता है कैसे? वन Sir, इज I suppose some सर which are नीड्स very और much वांट्स में, नीड्स and और वांट्स में. नॉट लाइक दैट. करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो तरह से हम पैसा लगाते हैं. वन इज योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, एंड वन इज योर इन्वेस्टमेंट. एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है? The investments have a return. एंड एक्सपेंसेस डज नॉट हैव अ रिटर्न. any return. एक्सपेंसेस में जो पैसा जाता है वो चला जाता है, वापस नहीं आता. और इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, दैट इज नेवर विद द पर्सपेक्टिव कि वो पैसा खर्च हो जाएगा. वो पैसा हमारे पास वापस लौट के आता है और कुछ परसेंटेज में बढ़कर आता है. ऑब्वियसली जितना आपने लगाया उतना नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा. ठीक है. जनरली 20% का आज के टाइम में अगर 20% का कहीं से रिटर्न मिल रहा है, सो इट्स लाइक बेस्ट. मतलब जो भी इकोनॉमिस्ट हैं आज के, या जो भी फाइनेंशियल सजेशंस देने वाले लोग हैं, 20% का जो रिटर्न है ना, वो बहुत बड़ा रिटर्न माना जा रहा है आज के ड्यूरेशन में. ठीक है.
सबसे पहले तो एक बात जो आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी है, मैं इतना समय आपकी क्लास के साथ सिर्फ इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ बिकॉज आई नो कि इस क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिंसेरिटी लेवल है उतना जो इन बातों को समझ सकते हैं, अब वरना मैं सीधे टॉपिक स्टार्ट करता। एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए, और वैसे तो सब पेरेंट्स जानते ही हैं, बट इन केस अगर इफ इट इज नॉट क्लियर टू एनी वंस पेरेंट्स, तो आप उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझा सको तो मुझसे बात करवाना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। स्टडी जो है ना, एजुकेशन, ये जिंदगी से कीमती इन्वेस्टमेंट है, और ये इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद सारी जिंदगी रिटर्न होकर आता है, पूरी लाइफ रिटर्न देता है। और बाकी इन्वेस्टमेंट आपको 10, 20, 25, 30%, 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको हजारों लाखों गुना रिटर्न देगा, ठीक। दो बातें आप अच्छे से क्लियर रखो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मैटर कि हॉस्टल डिपार्टमेंट की गलती है कि आपकी गलती है, वो मेरा काम भी नहीं है और मैं उसमें कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूं, ना ही करना चाहता हूं। बट द थिंग इज, पहली एडवाइस जो मेरी तरफ से है, बिकॉज मैंने बहुत सारी कॉपीज अभी चेक की हैं और मैं पहले से भी जानता था, ऐसा नहीं कि कोई कॉपी चेक करते के वक्त ही मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, मुझे पहले से पता था ये होगा। सबसे पहली गलती जो आप लोग कर रहे हो, ऑल ऑफ यू आर डूइंग, ठीक है, यू आर नॉट कमिंग टू द क्लासेस फिजिकली, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि कोरोना है और ये है वो है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कोरोना जैसा यहाँ है वैसा आपके घर पे है। अभी पूरे इंडिया में लगभग, खास तौर पे कुछ ऐसे एरियाज जो बहुत ज्यादा प्रोन है, वहां तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी ही नहीं है। बाकी पूरे इंडिया में कोरोना की सिचुएशन लगभग एक जैसी हो चुकी है। अगर आप प्रिकॉशन के साथ अपने घर पे रह रहे हैं तो वहां पे भी आप सेफ रह सकते हैं, और उतने ही प्रिकॉशंस के साथ अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी सेफ रह सकते हैं। प्रिकॉशंस अगर अपने घर पे नहीं रखेंगे तो उधर भी कोविड के शिकार हो जाएंगे, और यहाँ पर नहीं रखेंगे तो यहाँ पर भी आप कोविड से परेशान हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं, पहली तो ये कि यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस फिजिकली। इसमें कितना बड़ा लॉस है आप नहीं जानते। मुझे हर दिन महसूस होता है कि किस लॉस से आप निकल रहे हो। जब आप क्लास में रहोगे ना, देयर विल बी टू गुड थिंग्स। पहली बात, जो मिनिमम लेवल का प्रेशर आपके ऊपर रहना चाहिए वो रहेगा। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर क्लासेस, मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे बारे में कह रहा हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट और मेरे टीचिंग मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर क्लासेस। बट व्हाट यू आर मिसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप मिस कर रहे हैं ना, दैट इज टू बी इन कॉलेज, फन टू बी इन क्लास। आप जब यहाँ आओगे ना फिजिकली क्लास में, देन आई लेट यू नो, मजा आएगा क्लास में पढ़ने में। आपका जो टीएफएल पढ़ने का जो जॉय है ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना कम से कम। इंतजार रहेगा आपको, यू विल कीप ऑन वेटिंग, टीएफएल की क्लास कब आएगी, टीएफएल की क्लास कब आएगी। दैट यू आर मिसिंग। और फिजिकल टीचिंग जो है, दैट इज इनकम्पेरेबल। ऑनलाइन टीचिंग कैन नेवर टेक प्लेस ऑफ दैट थिंग। ये डिफरेंस तो खाली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिंसियर हैं। ये जो मैं जितना डिफरेंस बता रहा हूँ ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्लास अटेंड करने में मजा आएगा, इंतजार रहेगा क्लास का, ये डिफरेंस केवल उतने लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिंसियर हैं ऑलरेडी, जो ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं प्रॉपर, उनके लिए ये डिफरेंस 100 गुना हो जाता है। बिकॉज यहाँ जब आप रहोगे, पढ़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी। बिकॉज मैं किसी भी टेबल पर रैंडमली आ जाऊंगा और हो सकता है पकड़ के कान भी मेड़ दूं क्वेश्चन ना करने पर, या होमवर्क नहीं करके लेके आने पे। और वो कान मेटना जो है ना, इंटरव्यू के समय यू विल बी सो मच कंफर्टेबल। आप याद करोगे कि उस दिन सर ने कान मेट दिया तो डर के मारे काम करना पड़ा, और काम करना पड़ा तो यही क्वेश्चन अभी इंटरव्यू में पूछा है इसने जो उस दिन सर ने बोला था। दैट कैन हैपन। तो एक तो क्लासेस ना लेकर यू आर मिसिंग सो मच। एंड
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, ये कोविड सब फालतू का बहाना है। मैं बोलता नहीं हूँ आप लोगों को, बट द थिंग इज ये एक्चुअली बेकार का एक्सक्यूज है। कोविड एक जैसा है सब जगह, इट ऑल गोज विद योर प्रिकॉशंस। एक कमरे के अंदर अभी भी आप में से कोई बंद नहीं होगा, आप बाहर निकलते ही होगे, बाहर का खाना खाई, बाहर का खाना डज मीन अनाज कहाँ से ला रहे हो, बाहर से ही ला रहे हो, दाल रोटी आटा चावल गेहूं सब बाहर से ही आ रहा है, जाना ही पड़ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कि एक कमरे में बंद है। दैट इज पॉसिबल हियर ऑल्सो, उतना ही प्रिकॉशन आपको यहाँ रखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप क्लासेस मिस करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर इस गलती को दूर कर दिया जाए आपके लेवल पर, तो मेरे ख्याल से सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। 1 महीने का फी, 2 महीने का फी, 3 महीने का फी मैटर नहीं करता। हमको कॉलेज आना है, हमको हॉस्टल में रहना है, खूब मस्ती करनी है, जम के ऐश काटनी है और जम के पढ़ाई करनी है। फिर वहां ना 1 महीने की फीस का डिस्कशन बचता है, ना 2 महीने की फीस का बचता है। कॉलेज आना है, जितनी फीस है उतनी देनी है, जितने महीने की है उतनी देनी है, और पढ़ना है, खत्म बात। एक बात। दूसरी बात ये कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं ड्यू टू XYZ रीजन। अगेन वो क्यों चेंज हो रही है और कितनी चेंज हो रही है, फिलहाल मैं जिस डेजिग्नेशन पे हूँ, जिस पोस्ट पे हूँ, आई हैव नो राइट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अल्टीमेटली यू शुड थिंक कि जितने जो भी XYZ अमाउंट है, वो जितने अमाउंट से हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और वो क्या चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, ये सिर्फ आपको ही नहीं, आप कायदे से ही आपके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलता हूँ कि मान लीजिए कि 1 महीने की हॉस्टल फीस 10,000 रुपए। वैसे आप मुझे एग्जैक्ट अमाउंट भी शेयर कर सकते हैं, कोई बता सकता है व्हाट इज योर एग्जैक्ट हॉस्टल फीस पर मंथ? It's 9,000 something. 9,000 समथिंग, ठीक है। अब सिंस यू आर ऑल्सो रेडी टू पे, आप लोग भी 1 महीने का फीस देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और आपके डिस्कशन से मुझे पता चला कि यहाँ पर 3 महीने का फीस रिक्वायर्ड है, मतलब गैप कितना है, सिर्फ 2 महीने का, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ से तो सब लोग आके ज्वाइन करोगे, तो वो आगे तो वो डिस्कशन बढ़ने नहीं वाला है। ये जो कमिंग मंथ होगा सितंबर, ज्वाइन कर ही लेना चाहिए आपको। अभी भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं कॉलेज, तो ये एक्चुअली बहुत खराब बात है, ठीक है। सितंबर में आपको कॉलेज ज्वाइन कर ही लेना चाहिए सभी को, मतलब ये सारा डिस्कशन 2 महीने का है, ठीक है। अब 2 महीने को अगर आप इस तरह से देखो तो यू विल फाइंड आउट इट्स 18,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट 18,000 रुपीज, इट्स 18,000 रुपीज। कारण बताऊं क्यों मैं ऐसा वाला 18,000 बोल रहा हूँ, ओनली वाला रीजन। हमेशा इस तरह से देखो कि ये जो पैसा हम खर्च करने की या बचाने की बात कर रहे हैं, इज इट अ रेकरिंग एक्सपेंस, या ये पूरी जिंदगी के ऊपर एक बार खर्चा होना है। सिंस क्योंकि इस मंथ से आपको हॉस्टल ज्वाइन करना ही है आगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर महीने ये 9,000 का डिफरेंस आएगा। कोविड भी दोबारा लौट के वापस आ जाएगा, अभी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये सारा जो डिस्कशन है ये 18,000 रुपए का है, और ये 18,000 रुपए पूरे लाइफ टाइम में आप एक बार एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। सबका अपना अपना नजरिया होता है, मैं आप में से किसी का या आप में से किसी के पेरेंट्स का नजरिया गलत नहीं बता रहा हूँ। पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके पेरेंट्स के लिए भी है। मुझे नहीं पता किसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, किसके लिए 18,000 रुपए बहुत ज्यादा कीमती हो सकते हैं, इसलिए मैं किसी का भी नजरिया बता रहा हूँ, मैं मेरे सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कैसे सोचता। द डे व्हेन आई विल स्टार्ट अर्निंग, मैं जब कमाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, शायद मेरी सैलरी 50,000 या 60,000 रुपए होगी, जो भी XYZ अमाउंट आप अपने दिमाग में सोच के रखते हैं, ठीक है। उस समय ये 18,000 रुपए मेरे लिए क्या वैल्यू रखते होंगे? इट विल बी नथिंग। अगर 50,000 रुपए की मेरी 1 महीने की तनख्वाह है, तो लाइफ टाइम का 18,000 रुपए का डिफरेंस मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक मैं यूं पॉकेट झाड़ूंगा और 18,000 रुपए निकल जाएंगे। लेकिन ये 18,000 बचाने के लिए
हम लाइफ टाइम मिलने वाले 50,000 रुपए महीने से जिसकी शुरुआत हो सकती है उसको खो रहे हैं। एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं मिस्टर राकेश जैन, बिजनेस कोच हैं। मैं बहुत सारे बिजनेस कोचेस को सुनता हूँ और उनकी बातों को एनालाइज भी करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ उनसे रिलेटेड। उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज बताई थी, मैं बताता हूँ आपको। गुजरात में ही काम करते हैं वो। ही वर्क्स इन वडोदरा, अहमदाबाद, बहुत जगह पे बिजनेस कोचिंग देते हैं वो। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को बिजनेस कोचिंग देते हैं। उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज बताई थी। वो आप ही के यहाँ गुजरात में ही एक बार अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, दैट वाज कॉल्ड पाटीदार सम्मेलन। आप लोग सब पाटीदार क्या है जानते होंगे, पाटीदार पटेल्स, एवरीबॉडी नोस, ठीक है। मोस्टली जो लोग गुजराती हैं वो जानते ही होंगे। पाटीदार सम्मेलन था, उसमें उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज बताई थी। वो किसी को एड्रेस कर रहे थे टू समबडी, किसी का नाम लेके उन्होंने बोला था, कोई भी XYZ मान लीजिए कि मुझे ही एड्रेस कर रहे थे, मुझे ही कुछ समझा रहे थे। तो मालूम है कैसे समझाया उन्होंने? वो बोले, सपोज अगर मेरी वो बात कर रहे हैं तो बोले, सेतु भाई होता क्या है ना कि अपन ने क्या, जैसे ऐसे हाथ में तेल डाला और तेल हथेली में आ गया। अब हमने देखा कि इधर साइड से दो बूंद तेल जो है वो नीचे गिर रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, पूरी लाइफ के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई से भी ज्यादा ये जरूरी है। उन्होंने बोला कि ऐसे तेल डाला, मुझे सर में तेल लगाना था, मैंने ऐसे तेल डाला और मैंने देखा कि ये जो 2 बूंद तेल है यहाँ से गिर रहा था, ये गिरने वाला था ऐसे। अब मैंने सोचा कि ये 2 बूंद तेल गिर ना जाए, अब हथेली को ऐसे करूंगा तो गिरने का डर। तो मैंने क्या सोचा कि ये 2 बूंद तेल बचाने के चक्कर में मैंने हाथ ऐसे ले जाने की जगह यूं ले जाके सर पे बनाया कि 2 बूंद तेल यूज कर लूं, और उस चक्कर में जो बाकी का तेल था ना ये सारा नीचे गिर गया। बात आ रही समझ में? ये जो 18,000 रुपए है ना, ये वो 2 बूंद तेल है। जब आप अर्निंग स्टार्ट करोगे 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, भगवान करे लाख लाख रुपए तनख्वाह लगे सके, ठीक है, आई विल बी रियली हैप्पी अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादा कमाए तो, ठीक है। तो उस समय ये 18,000 रुपए विल बी इन दैट 2 बूंद तेल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी लाइफ में। लेकिन इससे ज्यादा कीमती है ये एग्जाम जो आपने छोड़ दिया। एग्जाम से भी ज्यादा कीमती है उस एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। एट लास्ट वो गलत हो जाए, सही हो जाए, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। एग्जाम्स क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि लाइफ में जो वर्क प्रेशर्स आते हैं आपके ऊपर, ठीक है, उनको हैंडल करना आप सीख सको। आप ये सीख पाओ कि जिंदगी में कई बार ऐसा मौका आता है जहां पर हमारी रेगुलर वर्किंग आवर्स 6 घंटे की हैं और कई बार हमको 10-10 घंटे के लिए भी काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। आमतौर पे आपको टीचिंग में ऐसे लोग कम मिलेंगे, लेकिन मैं जस्ट फॉर माय प्रोफेशन 3-3 रात जग के भी मैंने काम किया है, एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने एक बार में सर्व किया है, एक ही बार में। लोग 3 दिन में जितना काम करते हैं उतना मैंने एक दिन में किया, एंड आई हैव अर्न्ड फॉर दैट। पैसा कमाया मैंने उसके लिए। सो इसमें मैं मतलब एनी XYZ पर्सन, कोई भी जो उतना काम कर सकता है। तो इट्स जस्ट लाइक आप वो प्रेशर लेना कैसे है वो सीखने का मौका कब मिलेगा? राइट नाउ, कॉलेज में, एग्जाम में। इसके बाद थोड़ा ना ऑप्शन मिलेगा। एंड फॉर ऑल दिस लर्निंग, इतनी सारी लर्निंग में, और जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट और अनमोल चीज जिसका कोई कीमत नहीं है आप मिस कर रहे हो, दैट इज योर कॉलेज लाइफ। जब बड़े हो जाओगे ना, काम करने लगोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि ये जो टाइम है ना, इट डजंट कम बैक, ये वापस नहीं आता। कॉलेज खत्म होने के बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। पहले जॉब के लिए, फिर यू गॉट मैरिड, ब्ला 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 स्टफ्स, जिंदगी आगे चलती चली जाती है। इसलिए
दिस इज द ओनली चांस व्हेन यू कैन लिव फॉर योरसेल्फ। इसके बाद आपको अपने पेरेंट्स के लिए जीना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए जीना पड़ेगा, अपनी पर्सनल फैमिली के लिए जीना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए जीना पड़ेगा, सबके लिए जीना पड़ता है। तो ये वो प्रीशियस चीज है जो आप मिस कर रहे हो, ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से मिस कर रहे थे मजबूरी में, कोरोना की वजह से, और अब मिस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इतने से पैसे की वजह से, जो एक टाइम में आके आपके लिए कुछ नहीं होगा। पॉकेट से चिल्लर झाड़ोगे ना तो 18,000 की चिल्लर गिर पड़ेगी, इतना पैसा कमाओगे। तो हॉस्टल और आपके बीच में जो भी मैटर्स हैं, वो हॉस्टल का लुकआउट है, आपका लुकआउट है। मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस ये है, ये मैटर्स सुलझते रहेंगे, कहीं हॉस्टल नहीं भागा जा रहा, कहीं आप नहीं भागे जा रहे, यहाँ आके भी इन मैटर्स को सॉल्व कर सकते हो। इतनी दूर दूर से मेल्स, इधर से आप मेल भेजो, उधर से कोई आपके पास मेल आए, ये सब यहाँ आके भी हो सकता है। वर्स्ट केस व्हाट विल हैपन, आपने लेट अस से एक बार 18,000 रुपए भर दिए। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आप वहां से दूर से बैठ के भी तो क्या कोशिश कर रहे हो? टू कन्विंस पीपल। ठीक है, नाउ आई वांट रिस्पॉन्स ऑफ एवरीवन। अभी तक मैं बोल रहा था, मुझे सबका रिस्पॉन्स भी चाहिए। सब लोग अनम्यूट करके रखिए। वहां इतनी दूर से बैठ के, ठीक है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि वो आपकी बात मान जाए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग ना, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ जस्ट इमेजिन वन सिनेरियो, कब कन्विंस करना ज्यादा आसान होगा? मेल पे कन्विंस करना ज्यादा आसान होगा, या यहाँ आकर? तुम लोग तो सब मोस्टली गुजराती लोग हो, एंड गुजरातीज आर वेरी स्मार्ट, आई नो। हमारे यहाँ यूपी में तो लोग लड़ लड़ के अपना करियर खराब, मतलब झगड़ा करके मामला बिगाड़ देते हैं, बट गुजरातीज आर वेरी स्मार्ट। उनको मालूम है कैसे मीठा मीठा बोल के अपना काम चलाना है। सो व्हाट इज मोर इजी वे? आप वहां से दूर से बैठ के मेल पे कन्विंस करना ज्यादा आसान है, या यहाँ आकर उनसे बात करके कन्विंस करना ज्यादा आसान है? जस्ट थिंक ऑफ इट। सर अगर वहां आके कन्विंस करते कि मतलब, सर आई डोंट थिंक वो पॉसिबल होता। क्यों नहीं होगा? तो वो मतलब पहली बात तो सर, हॉस्टल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सजेशंस के ओपन नहीं होता, बिल्कुल कभी भी नहीं। किसी से भी बात करते तो सर वो कुछ भी मतलब ऐसे बिल्कुल भी एडजस्ट करने के लिए एग्री नहीं करते, बहुत लाइक रेयर केसेस में करते हैं। जैसे मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं सर, 4th सेमेस्टर में जब हमारी मिड सेम एग्जाम हुई थी तब सबको फोर्सफुली बुलाया था ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए। और सर मेरा कैसा सिनेरियो है कि मैं जिधर रहता हूँ ना, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब मान लो अगर मैं वहाँ बाहर निकला वहां से, तो अगर मुझे अंदर जाना होगा तो उसके लिए 15 डेज का क्वारंटीन वो लोग कहीं और अलॉट करेंगे होटल में। वहां रुकने के बाद ही अगर कोविड नेगेटिव होगा तो ही जा पाऊंगा मैं। और उसके लिए भी सर मेल करने पड़ते 10-15 की, ऐसे ऐसे जाने वाला इस डेट को वापस आएगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ था सर, इन लोगों ने पूरी 3 महीने की फीस ले ली थी, और मेरे रूम का कुछ 44,500 फीस था 3 महीने का। तो वो पे करा मैंने 44,500, और उसके बाद में वहां रुका, एग्जाम दी मैंने। एग्जाम देने के बाद में लास्ट एग्जाम सर उन्होंने कैंसिल कर दिया और बोला गवर्नमेंट गाइडलाइंस है इसलिए हम सब बंद कर रहे हैं, आप लोग घर चले जाओ वापस। मैं 6 डेज इन टोटल रुका, 6 to 7 डेज इन टोटल मैं रुका, और फिर वापस घर आ गया। अपने 15 दिन का क्वारंटीन जो था उसके बाद वापस घर आया। अब जब मैं दोबारा इधर वापस आया सर एग्जाम देने, तो मैंने बोला कि लास्ट टाइम मैंने 44,500 फीस पे करी और मैं सिर्फ 6 डेज रुका, तो अब थोड़ा हो सके तो कुछ वो करो, कॉम्पेंसेट करो फीस। तो सर उन्होंने बोला हमारी पॉलिसी में है ही नहीं, हम आपको सिर्फ 20,000 वापस कर सकते। तो उन्होंने सर सिर्फ 6 डेज के लिए उन्होंने 24,500 फीस काटी सर। इतना बोलने के बाद भी मेरे पापा ने बात करी, उसके बाद भी सर उन्होंने ये ऐसा करा। ये लोग बिल्कुल, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करता सर, ये बात नोटिस करी है मैंने। देखो, And sir, in addition to that, let me tell you some more thing. Like हम लोग वहाँ पे हैं, they take a deposit money from us. Even if we agree कि हम जब भी आएंगे, we will give you the fees. They didn't, वो consider नहीं करते। वो क्या करते सर, अभी मतलब जितने दिन आप नहीं हो और आपका सामान अगर वहाँ पे पड़ा है, they be like they keep on deducting the deposit money, even if you agree to pay them to the fee.
और कुछ रिबेट नहीं, कोई कंसेशन नहीं। आप इतना पोलाइटली बोल रहे हो, वो ये वाली लैंग्वेज यूज ही नहीं करते। वो एकदम स्ट्रिक्टली बोलेंगे ऐसा है, ये हमारी पॉलिसी है, वी कांट डू एनीथिंग। देखो अगेन, मैं आप जो कह रहे हो वो सारी बातें मैं अग्री करता हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो जो आप बता रहे हो उससे कुछ अलग है। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज टू पार्टी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. सपोज टू पार्टीज आर देयर, पार्टी एक्स एंड पार्टी वाई, ठीक है? ये हॉस्टल हो सकता है, ये आप हो सकते हो, ये मैं हो सकता हूँ, ये आप हो सकते हो, कोई भी दो पार्टी है, ठीक है? ऑल आई एम सेइंग इज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्स, आप मुझे बता रहे हो कि सर ये एक्स वाली पार्टी है, इनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक, मैंने अग्री कर लिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनका एटीट्यूड खराब नहीं है, वो आपका और उनका डिस्कशन है एंड ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अगर आप कह रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब नहीं है, ये एटीट्यूड बहुत खराब है, मान लेते हैं, ठीक है? मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वाई पार्टी है, ये दूर से बैठे बैठे whatever the bad attitude it is, ये तो सेम ही रहने वाला है ना। आप यहाँ पे आके बात करोगे या वहीं बैठे बैठे बात करोगे, इसमें कुछ बदलाव आने वाला है क्या? ये तो वैसा का वैसा रहेगा, चाहे चाहे जो कर लो, ठीक है? कहने का मतलब चेंजेस किसको लेकर आने हैं? दिस वाई पार्टी। ये वाई पार्टी को कन्विंस करना है इस एक्स पार्टी को। गॉट द पॉइंट? ठीक है? अब ये दूर से बैठे बैठे करेगी तब भी ये चीज ऐसी ही रहनी है, और ये यहां पास आके करेंगे तब भी ये चीज ऐसी रहनी है। बट द पॉइंट इज कि इस वाई के लिए ये काम करना आसान कब है? आप खुद सोचो ना, जस्ट थिंक ऑफ इट। आज मैं वट एवर आई एम सेइंग, मैं आपको अल्टीमेटली मैं आपको क्लास में फिजिकली आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स द ओनली थिंग आई एम डूइंग, राइट? अब इसी बात के लिए मैं हर स्टूडेंट को मेल लिखता रहूं, एंड वन इज जहां मैं खुद अपना वीडियो ऑन करके यू कैन सी माय फेशियल एक्सप्रेशंस। आफ्टर ऑल मेरे चेहरे से आपको मेरा ऑरा, मेरी वे ऑफ एक्सप्रेशंस, मेरी ऑथेंटिसिटी, मेरी ट्रुथफुलनेस सब दिखती है, ठीक है? व्हाट इज मोर कन्विंसिंग फॉर यू? मैं वहां से बैठे बैठे यहाँ से आपको मेल मार्क करता रहूँ, आपने फलानी चीज नहीं की तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं नंबर काट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 10 तरीके की धमकी देता रहूँ, ठीक है? एंड वन इज दैट आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? यू ओनली टेल मी व्हाट इज मोर कन्विंसिंग टू यू। When you're there physically. ये ऑब्वियसली ज्यादा कन्विंसिंग है ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात समझाने की, कन्विंस कर रहा हूँ टू यू पीपल, ठीक है? अब इसी सिनेरियो में आप खुद को फिट करके देखो, आप वही कर रहे हो इस वक्त प्रोबेबली जो शायद आपको पसंद ना आए, या जिससे आप खुद कन्विंस नहीं होगे। माने मैं यहां से बैठे बैठे आपको मेल करता, आप कन्विंस नहीं होते, बट अभी मैं बात कर रहा हूं तो आप कन्विंस हो रहे हो, भले ही थोड़े बहुत हो रहे हो, 1% हो रहे हो, 2% हो रहे हो, बट इतनी तो पक्का है कि मेल पढ़ने से ज्यादा कन्विंस हो रहे हो। 3-4 मेल के बाद आप पढ़ते भी नहीं, ऊपर से लैंग्वेज पढ़ लेते, डियर स्टूडेंट्स फलाना फलाना कर दिया जाएगा, आगे भी नहीं पढ़ते, एक लाइन के आगे पढ़ते भी नहीं, बट एटलीस्ट अभी मुझे सुन रहे हो। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट ऑलवेज द बेटर ऑप्शन इज कि आप यहाँ आओ, ठीक है? समहाउ बीटेक तो करना ही है अभी, ऑब्वियसली। सपोज ये 18,000 का कॉन्फ्लिक्ट अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप में से कोई ऐसा है क्या जो बीटेक छोड़ देगा? नो सर। ऐसा तो कोई नहीं है ना। बीटेक तो सबको करना ही है ना, प्रैक्टिकली आई एम स्पीकिंग, ठीक है? सबको बीटेक करना ही है, ठीक है? बट द पॉइंट इज इफ यू कम हियर तो आप दो चीजें बचा सकते हो। जो समय चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आता। होशियार आदमी पीछे की चीजों पे बैठ के रोता नहीं फिरता है, वो आगे की चीजें मैनेज करता है। सबसे पहली चीज जो होगी वो क्या होगी? इस दिन से आगे का करियर आपका स्पॉइल हो रहा है, किसी और का नहीं, वो बचेगा, पहली चीज। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज मोर कन्विंसिंग टू कम हियर एंड टू कन्विंस पीपल।
हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है। सपोज आपने एक लेवल पे अपनी बात कही, नहीं आपको वैसा ट्रीटमेंट मिला जैसा आप चाहते थे, वो रिस्पॉन्स ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो दैट्स नॉट माय कॉल टू से एनीथिंग, बट यू हैव अ नेक्स्ट हायरार्की। आप उसके ऊपर कोशिश कर सकते हो, उसके ऊपर कोशिश कर सकते हो। आपसे जाने क्या वाला है, अगर इंस्टीट्यूशन कंसिडर करेगा तो वो जो आपके 18,000 इस समय के लिए चले जाएंगे वो आगे एडजस्ट हो जाएंगे। बात को समझो, प्रैक्टिकल बात समझो। 18,000 इस समय अगर जाते भी हैं तो वो 18,000 आपके आगे एडजस्ट हो जाएंगे ना, फीस तो आगे भी देनी है। अगर इंस्टीट्यूट कुछ कंसिडर करेगा तो वो 18,000 आपके आगे एडजस्ट हो जाएंगे आगे की फीस में। और अगर इंस्टीट्यूट कंसिडर नहीं करेगा तो डेफिनेटली मेल से तो नहीं करने वाला। तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है और बढ़ रही है। अभी ये मंथ जो आप फैसिलिटी हॉस्टल की यूज नहीं कर रहे हो, क्या पता आगे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए कि हमने तो आपको बोला था टू कम टू द क्लासेस एंड टू जॉइन द हॉस्टल, आपने क्यों नहीं किया। All I want to say is it's merely 18,000. The better way is first deposit it, come into the college, join the classes, और फिर धीरे धीरे बात करते रहना आराम से, हो जाएगा आगे एडजस्ट। अगर कंसिडर होगा तो आगे की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। भाई मेरे हिसाब से तो यही ज्यादा अच्छा तरीका है। बाकी तुम लोग अगर इससे कोई बेहतर तरीका सोच सकते हो तो सजेस्ट मी, क्लास में एक दूसरे को सजेस्ट करो, उस तरह से कर लो। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है अगर आपको रिजॉल्व करना है, इट्स ऑलवेज गुड टू सिट ऑन द टेबल। यहाँ आओ, फेस टू फेस बात करो, आपके फेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी दिखती है, दैट इज ऑलवेज मोर कन्विंसिंग। ठीक है, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। अपार्ट फ्रॉम गोइंग इनटू दिस मैटर कि किसने गलत किया किसने सही किया, ये देखना बेहतर है कि हमारे लिए ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अड़े रहने से हमारे लिए चीजें गलत हो रही हैं या सही हो रही है, वो देखना ज्यादा बेहतर है। आप खुद देखो, आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, और डिसीजन लो। गॉट इट एवरीवन? यस अरे सर। बात समझ में आई सबको? ठीक है, Yes, मेरी sir. एडवाइस है, यहाँ आओ, सबसे बात करो, थिंग्स विल रिजॉल्व, डोंट वरी। और 18,000 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, जिसके लिए तुम लोग अपना फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। दैट शुड नॉट हैपन। टेक योर कॉल, देखो क्या करना चाहते हो। क्लास में आओ तो बेटर है, बहुत बच्चों को नुकसान हो रहा है क्लास में नहीं आने की वजह से। ठीक है, चलो। सो अटेंडेंस एक काम करो, चैट बॉक्स में भेज दो, या अभी तो लंच टाइम है ना, हाँ वी हैव टाइम, ले सकते हैं अटेंडेंस। लेट मी टेक द अटेंडेंस। कोई बात नहीं, आज का टाइम, आज की क्लास का मैं टॉपिक भी यही डालूंगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज हमने वही सीखा है, टीएफएल नहीं पढ़ा है, आज हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही सीखी है। एक बात का बस ध्यान रखना हमेशा, वो 2 बूंद तेल वाली जो कहानी बताई ना मैंने, वो बड़े काम की है। लाइफ लॉन्ग इस बात को ध्यान रखना, वो 2 बूंद तेल बचाने के चक्कर में पूरा तेल मत उलट लेना, वरना नुकसान ही नुकसान होगा। TP1 students,
से TO1 में है, TP1 नहीं है। एक काम करो, TP1 वाले सारे स्टूडेंट्स, ऑल TP1 स्टूडेंट्स, पुट इट इनटू द चैट बॉक्स। अटेंडेंस जो है चैट बॉक्स में लिख दो, सभी TP1 स्टूडेंट्स, ओनली TP1, only TP1 students, put your attendance into the chat box. When I prepared for GATE, जब मैंने गेट के लिए तैयारी की थी और कोचिंग में पैसे खर्च किए थे, उस समय मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि यार इतना पैसा खर्च हो रहा है कोचिंग में, बीटेक करने के बाद भी क्या फायदा है। उस समय 30,000 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा होते थे। आई वॉज नॉट अर्निंग, केवल मेरी मदर ही अर्निंग थी और घर में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। मैं बिलोंग करता हूँ, तो नॉट टुडे, उस समय, आज नहीं, तो उस बहुत बट टुडे फील अगर 30,000 रुपए मैं उस दिन खर्च नहीं किए तो आज मैंने निकाल और मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी गेट में। अगर नहीं पढ़ाई की थी तो आई वुड हैव नेवर क्रैक्ड दीस इंटरव्यूज। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने सिर्फ इसलिए निकाले बिकॉज मैं गेट के लिए अच्छे से पढ़ाई की थी। तो ध्यान दीजिए उस बात पे, ये इन्वेस्टमेंट है, हजारों का रिटर्न हो क्या आएगा। और अगर आप इस समय थोड़ा सा पैसा लगाने से किसी भी XYZ वजह से, कौन सही कौन गलत अपार्ट फ्रॉम दैट, कतराओगे तो उसके बदले जो रिटर्न आना है ना वो भी नहीं आएगा। उस बात का ध्यान रखिए। TO1 वाले भी अब अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग प्रेजेंट है। आई होप मेरी बातें अगर ठीक लगी होंगी सभी को। TO1 स्टूडेंट्स, बिग डेटा स्टूडेंट्स, पुट योर अटेंडेंस। कोई नहीं है क्या TO1 से आज? अच्छा, वी हैव गॉट इट। ठीक है, तो मेरी बातों पे अच्छे से विचार करो, अपने पेरेंट्स से भी बात करो, आपस में आप दोस्तों में अगर एक दूसरे को समझते हो कि कोई एक दूसरे को एडवाइस करने के लायक है, तो जो भी 3-4 फ्रेंड्स का आपका ग्रुप हो आपस में, वो साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एंड आई जस्ट से टेक अ क्विक डिसीजन, फटाफट डिसीजन लो, है ना, देर मत करो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई रियली वांट कि आपका ये जो भी मैटर है सॉल्व हो जाए। ठीक है, और यहाँ आके सॉल्व करोगे तो आई एम डैम श्योर जल्दी सॉल्व होगा, बजाय वहां से बैठे रहने के। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, यू आर मोस्ट वेलकम।